open your workbook. Last time we done in the textbook about poem and story. Now come to the explanation of workbook. So here is the unit 9.10 and first one is about poem explanation. So start with the question 1. Answer the questions. I hope that you written in your workbook. So first one is question answer. This one. Start with the first. How old is the boy in the poem? तो जैसे कि हमने पोएम में लर्न किया था that how old the boy in the poem? So answer is the boy in the poem is about 8 years old. वो boy जो था वो कितने साल का था? 8 years old. Second, who are inverted comma? They and them in the poem. They and them. तो they and them in the poem are the boy's parents. तो in this poem वो word आता था they and them. तो वो जो है वो किसके बारे में था? So they and them in the poem is about boy's parents. Third one, the boy's parents don't allow him to do many things. Why? तो बच्चा जो है 8 years, so उसके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ करने को मना करते थे, राइट? ऐसी कौन सी ऐसी थिंग्स थी और क्यों? The boy's parents don't allow him to do many things. पहले जो है वो क्वेश्चन वही का वही आएगा और आंसर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? आफ्टर राइट अ बिकॉज यानी रीजंस को दिखाने के लिए बिकॉज लिखा जाता है, राइट? So आगे का सेम टू सेम. The boy's parents don't allow him to do many things. ऐसी बहुत सारी थिंग्स होती है, राइट? तो वो करने को मना कर रहे हैं because they think he is not big enough yet. तो ऐसा इसलिए कि वो समझते हैं कि अभी वो करने के लिए बहुत ही छोटा है, बड़ा नहीं है. Next one, fourth. What does the boy want to show everyone? So boy, what does to show? Boy जो है वो सबको क्या दिखाना चाहता है? The boy wants to show everyone that if he tried, he could do many things. अगर वो ट्राई करे, राइट? अगर उसको वो करने के लिए परमिशन दी जाए तो वो बहुत सारे थिंग्स जो है वो कर सकता है. Fifth one and last one. What is the secret that the boy is hiding? तो ऐसा कौन सा सीक्रेट था पोएम के अंदर जो बॉय जानता है पर वो किसी को पता नहीं है? उसके अंदर वो छुपा हुआ है. हाइडिंग यानी छुपा हुआ. The boy is hiding the secret that he is really giant inside. तो एक लास्ट वर्ड आता था पोएम के अंदर, राइट? तो उसमें लिखा हुआ था जायंट. तो सब लोग समझते हैं कि वो अभी छोटा सा है, वो कुछ नहीं कर सकता. बट जो बॉय है, वो बच्चा जो है 8 years का, वो अंदर से अपने आप को बड़ा सा जायंट यानी कि ह्यूज बड़ा हो चुका हुआ वो समझता है कि मैं तो बड़ा हो ही गया हूँ. अंदर से उसको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं तो अंदर से बड़ा ही हूँ, राइट? So we done question answer. Come to the next one. Write the correct option A, B, C, D in the box. It means MCQs. So first one. Who are they? T-H-E-Y, they. Inverted comma. In the poem. So first one is friends, brother and sisters, parents or teachers. So what are they in the poem? So answer is C, parents. Next. The boy in the poem is 8 years old, यानी कि small. So first one small, big, grown up and naughty. So what's the answer? A, small. Third one, they don't allow the boy to do many things because answer is D. He is not big enough, right? He is careless. He is not small enough. He does not understand. D is he is not big enough. So answer is D. Fourth one. The boy will wait till he is. Boy जो है वो इंतजार कर रहा है किसका? A. Given a chance. B. Grown up. C. Ready or D. Small. यानी कि जो इंतजार कर रहा है वो किसका? Grown up यानी कि बड़े होने का. So answer is B. Fifth one. The boy will show that. तो
तो वो क्या दिखाना चाहता है? सो आंसर इज ए। इफ ही ट्राइज कैन डू मेनी थिंग्स, राइट? अगर वो ट्राई करे तो वो बहुत सारी चीज जो है वो कर सकता है। 6. Nobody knows that the boy is, answer is B, a giant inside. So MCQ जो है वो रिपीटेड है। क्वेश्चन आंसर अगर आप अच्छे से करोगे, स्टोरी को समझोगे, पोएम को समझोगे, तो बाकी का जो है वो सेम टू सेम ही आएगा। Turn the page. Come to the question 3. Write the synonyms of the given words. So last time we learned that synonym means similar words. So here is the option: tiny, large, lovely, forest and lots. So first word is jungle. तो जंगल उसका सिनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड्स कौन सा है ऑप्शन में से? tiny, large, lovely, forest और lots. So obviously answer is forest. जंगल यानी कि forest, दोनों का मतलब एक ही हुआ। दूसरा second one is big. big यानी बड़ा सा। So what's the answer? tiny, large, lovely or lots. So large and big both are the same words. Third one, many यानी कि lots of, right? Fourth one, small यानी कि छोटा सा, तो उसका दूसरा वर्ड क्या है? tiny. And last one is beautiful यानी कि बहुत ही सुंदर सा, right? तो it means lovely. So here is the completed. Number 4, read the words and sort them according to their sounds, right? So last time we learned in the textbook that J sound and G sound. Here is the many kinds of words start with the J and G, right? So here is the option in your workbook. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं and you have to, yes, this one G and J, and you have to write in a particular column words with the J sound and words with the G sound. So for an example, question number 4, J sound and G sound. A word that start with the J उसको हम लिखेंगे यहाँ पे और बाकी के G में, राइट? तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल जो है मैं करा रही हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल स्टार्ट विद द जायंट। तो जायंट का स्पेलिंग जो है वो G से है कि J से है? ऑब्वियसली वो G से है। तो जायंट जो है वो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज गम, तो वो भी यहाँ पे GUM। फिर है जैकेट, तो जैकेट में G नहीं आता, क्या आता है? J आता है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर आपको दिया है जिराफ, तो जिराफ में G या फिर J? ऑब्वियसली G, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे, राइट? सो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि गार्डन, जाम, गिफ्ट, जुलाई, ग्रैंडफादर, चार, गोट, जंप, गिफ्ट, गूस, jump and gate, right? So you have to write in the J sound and G sound particularly. Next one is read the words and sort them according to their sound, right? So same as before, words with K sound and words with S sound. So यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि कार्ड, सर्कल, केज, सेल, क्रेन, सर्कस, केक, सेंटर, कैमल, केक, साइकिल, बॉम्ब एंड सिटी। सो ऊपर जो था वो J एंड G साउंड था, तो उसमें वर्ड को देख के आपको पता चल जाता था कि ये वर्ड जो है वो J से स्टार्ट होता है तो J में ही लिखना है, और G से स्टार्ट होता है तो G में ही लिखा जाएगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सारे वर्ड्स जो है वो C से स्टार्ट होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जस्ट प्रोनाउंस अ सिंगल वर्ड्स, राइट? जो उसका वर्ड जो है वो सेम स्पेलिंग से होता है, C से, K से, अल्फाबेट सेम होता है, बट जब उसको हम बोलते हैं ऐसे, राइट?
अगर वर्ड को यूज करके बोला जाता है तो उसका साउंड जो है, उसका प्रोनाउंस जो है वो बदल जाता है। फॉर एन एग्जांपल कार्ड एंड सर्कल, राइट? तो सर्कल भी सी से स्टार्ट होता है और कार्ड भी सी से स्टार्ट होता है, बट कार्ड उसमें के हमें लगता है कि वो के साउंड है और सर्कल जो है वो सी यानी कि एस से स्टार्ट होता है, राइट? तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि वर्ड्स विद द के साउंड एंड वर्ड्स विद द एस साउंड। सो फर्स्ट वन इज अबाउट कार्ड, देन आफ्टर सर्कल। तो कार्ड, तो ऐसे हम कहते हैं, राइट? तो कार्ड जो है वो के एंड एस, कार्ड। तो स्पेलिंग इज CARD, बट जब उसको प्रोनाउंस बोला जाता है तो वो के से साउंड होता है। देन आफ्टर यस सर्कल, तो सर्कल जो है वो सी से ही स्टार्ट होता है, राइट? पर जब उसको बोला जाता है तो साउंड इज एस। देन आफ्टर है केज एंड सेल। तो केज जो है वो कहाँ आएगा? यहाँ पे, राइट? स्पेलिंग वही का वही रहेगा, सिर्फ जिसका प्रोनाउंस के से हो वो यहाँ पे लिखना है और एस से हो वो यहाँ लिखना है। जैसे कि सेल, तो सेल का प्रोनाउंस जो है वो एस से स्टार्ट होता है। देन आफ्टर ऐसे ही बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि क्रैन। तो क्रैन इज इन के साउंड एंड सर्कस, तो सर्कस इज इन एस साउंड। देन आफ्टर केक, तो केक इज इन के साउंड एंड देन आफ्टर सेंटर, सेंटर इज इन एस साउंड। Then after a camel, cape and pom. तीनों word it is in a K sound and cycle and sit it's in a S sound, right? Here is the question 5 sound, please. Then after come to the next page, question number 6. This one. Make a list 4 new words from the given words. हमें क्या करना है? जो words हमें दिए हुए हैं उससे, उसके अलावा, उसके ऊपर से ही हमें नए 4 वर्ड्स बनाने हैं, राइट? जैसे कि सनफ्लावर। सो क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज सनफ्लावर। So here is a word and you have to find out the new words and write in your workbook. So sunflower, तो इसमें से फर्स्ट तो बनेगा सन, सेकेंड वन बनेगा फ्लावर। दोनों को अलग कर दिया तो 2 वर्ड तो बन गए। चलो अभी सोचो आप दूसरे वर्ड। आपको बुक में यहाँ पे 4 ब्लैंक्स दी है। इन ईच वर्ड, right? In each word you just given 4 blanks. Sun, flower. Then after आप सोचिए कि अभी दूसरे वर्ड जो है वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो ओम बनेगा, OWN। Then after OR। अभी और भी बन सकते हैं, राइट? लोअर, फिर यस, नो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और भी बन सकते हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ब्लैंक्स दी है, इसलिए आपको मेक योर ओन वर्ड्स एंड देन आफ्टर राइट इन योर वर्कबुक। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिखो, बट आप जो भी वर्ड अपनी वर्कबुक में लिखो उसका मीनिंग पर्टिकुलर होना चाहिए, राइट? तो आई जस्ट राइट इट डाउन, सन, फ्लावर, ऑन, और, लोअर, नो, राइट? देन आपका दूसरा क्लोथ्स। Clothes, right? So start with the clothes. तो first one बनेगा the, THE the, right? फिर lots, lots of LOTS, lots. फिर he, HE he, and she, HE she, right? Here is just I write it down 4 words. Third one, postman. तो post man 2 वर्ड तो बन गए। Then after यहाँ पे दूसरा बनाना है, तो हम नए वर्ड कौन से बनाएंगे?
Yes, top, T-O-P, top, and stop, S-T-O-P, stop. नेक्स्ट वर्ड आपको दिया है स्टीमर. नेक्स्ट वर्ड आपको दिया है स्टीमर. सो यू हैव टू मेक अ वर्ड्स दैट फर्स्ट वर्ड T-E-A-M, team. फिर है स्टीम, फिर बनेगा M-E-T, मैट. फिर बनेगा यस टीम, टीम यस स्टार. Team, stay, mat and star. Come to the next one. Last one is grandfather. So, दो वर्ड को अलग. Grand, then after है father, then after है yes A-N-D and और दूसरा जो है हम लिखेंगे हर, H-E-R, हर. Right? So here is the question 6 is about make a list of the words that the given words. Yes, poem का last topic जो है explanation का वो है write about 5 sentences on in inverted comma when I grow up. तो आपको sentences बना के लिखने हैं. तो टॉपिक क्या है? When I grow up, अगर मैं बड़ा या फिर बड़ी हो जाऊँ तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ या फिर क्या क्या कर सकता हूँ उसके बारे में. So you just have to watch in your workbook that you written. When I grow up, I will be a teacher. I will teach English in my school. Sometimes I will also tell stories to the children or play with them. I will not give any homework. I will never get angry with the children. I will be a very good teacher. Here is the topic about a teacher, right? यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है जो टीचर के बारे में है, राइट? अगर मैं बड़ी या फिर बड़ा हो जाऊँ तो मैं क्या बनना चाहूँगा? तो यहाँ पे जस्ट एक टॉपिक है, उसके टॉपिक में लिखा है कि टीचर के बारे में. अगर मैं बड़ा या फिर बड़ा हो जाऊँ, बड़ा या फिर बड़ी, राइट? तो मैं टीचर बनना चाहता हूँ और मैं क्या करूँगा टीचर बन के? आई विल टीच इंग्लिश इन द स्कूल. मैं स्कूल में इंग्लिश पढ़ाऊँगा सारे बच्चों को. और समटाइम्स आई विल आल्सो टेल द स्टोरीज टू द चिल्ड्रन, राइट? कभी कभी मैं क्या करूँगा कि बड़ा होके टीचर बन के सबको स्टोरीज में सुनाऊँगा इंग्लिश में, राइट? आई विल नॉट गिव एनी होमवर्क, और मैं कभी किसी को होमवर्क नहीं दूंगा. अगर ऐसा कुछ हो तो मैं पनिशमेंट दूंगा, बट कभी कभी. I will never get angry with the children, right? Children के सामने मैं कभी गुस्से से बात नहीं करूँगा. I will be a very good teacher. मैं सबसे अच्छी या फिर अच्छा टीचर बनना चाहूँगा, right? तो ये था टीचर का टॉपिक. If you want to write it down that a doctor, engineer, whatever you like, you have to write just a few lines about it. And yes, obviously, firstly you have to practice in your notebook, and after write in your workbook. So students, here is the explanation of poem in your workbook is now finished. You have to watch this video and after write down in your workbook, right? Thank you. Have a nice day.